ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿਨੀ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 8 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਖੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। खींचने वाला जो हवा होगा जो हम ले रहे होंगे उससे 7 से 10 डिग्री टेम्परेचर हम कम छोड़ेंगे। फुट एयर को हम लोग क्लीन कर रहे हैं 18 घंटे के ऑपरेशन टाइम में। उसके ऊपर आपको क्लियरली नज़र आएगा कि कितना टेम्परेचर कम हो रहा है। ये आपने कब से शुरू किया ये प्रोजेक्ट? ये हमने फरवरी 16 तारीख से शुरू किया था। ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट होगा अगर ये पहला लगेगा तो। ये इस तरह का टावर कहीं नहीं लगा हुआ? नहीं जी, अभी तक नहीं। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇसी ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਕਟਰ 26 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇसी ਚੌਂਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਟਾਵਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਵਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਵਰ ਹੈ ਇਹ 8 ਮੰਜ਼ਲੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 8 ਮੰਜ਼ਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਨ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ 4-5 ਡਿਗਰੀ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਵਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਜੈਨਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਵਲ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘਟਾਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੋਜ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਰਾ, ਇਹ टावर ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ टावर? ये करीब 24 मीटर ऊंचा रहेगा। करीब अगर देखा जाए तो 78 फीट 80 फीट के आसपास रहेगा ये टावर। ये कितनी मंजिला हो गया? लगभग 7-8 मंजिल के आसपास हो 8 मंजिल के करीब हो जाएगा ये ऊंचा जी। तो ये क्या काम करेगा? ये जो हम ना पॉल्यूशन जितना भी पॉल्यूटेड एयर है वो पहले हम वातावरण से खींच लेंगे और उसके बाद उसको क्लीन करके, उसको पूरा प्रोसेस करके क्लीन करके और उसका टेम्परेचर कम करके मतलब उसको हम फिर वापस उसी वातावरण में वापस डाल देंगे। नहीं, पोल्यूशन का स्तर जो डाउन करोगे, क्लीन करोगे, वो अपने आप ही वो ठंडी हो जाएगी कि उन्होंने कोई होर ठंडा किया जाएगा? कोई इदा का सिस्टम लगाया जाएगा कि हवा जड़ी है वो ठंडी होकर निकले? कुछ तो उसके वजह से भी ठंडी हो जाएगी कि पोल्यूशन कम हो गया, लेकिन कुछ हमने और भी सिस्टम लगा रखे हैं जिससे 3-4 डिग्री और कम हो जाएगा। तो टोटल 7 से 10 डिग्री टेम्परेचर जो है ना हवा का कम हो जाएगा। जो हम
जो हम हवा खींच रहे होंगे वो जब हम छोड़ रहे होंगे तो वो जो खींचने वाला जो हवा होगा जो हम ले रहे होंगे उससे 7 से 10 डिग्री टेम्परेचर हम कम छोड़ेंगे उसमें हवा। तो मतलब कि कितना की एरिया जो टेम्परेचर जिसका कम होगा वो कितना की एरिया होगा? क्या इसके 100 मीटर के दायरे में कम होगा, आधा किलोमीटर होगा, किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा? कितना का एरिया जो है आपके हिसाब से क्लीन हो जाएगा और कितने एरिया का टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा? एक्चुअली क्या है ना, हम लोग 3 करोड़ 80 लाख क्यूबिक फुट एयर को हम लोग क्लीन कर रहे हैं 18 घंटे के ऑपरेशन टाइम में। 18 घंटे में 3 करोड़ 80 लाख क्यूबिक फुट एयर हम लोग क्लीन कर रहे हैं। उसको अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो 500 मीटर बाई 500 मीटर का एरिया होता है। ठीक है, 500 मीटर की जो परिधि है, 500 मीटर का जो गोला है, उसमें जो है एक तो जो पोल्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा, एयर काफ़ी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाएगा और जो एरिया जो टेम्परेचर है वो भी 7 से 10 डिग्री कम हो जाएगा। यही कह रहे हो आप? एरिया का कम नहीं होगा, जो हम एयर ले रहे हैं उस एयर को हम लोग कम करके भेजेंगे, उस एयर को क्लीन करके भेजेंगे हम लोग। अच्छा, जो एयर आप छोड़ोगे उसमें कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में कितना लोगों को कितना महसूस होगा अगर मैं वहाँ थर्मामीटर लेके बैठूंगा आधा किलोमीटर दूर, तो नॉर्मल से वो कितना के डाउन नज़र आएगा? वो हम एक्चुअली जब हम करेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा। अभी इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जैसे टेम्परेचर डाउन होगा मैं नॉर्मल से और सेक्टरों से यहाँ के एरिया में कुछ टेम्परेचर डाउन होगा? बिल्कुल थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस आएगा और वो यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन होगा, उसके ऊपर आपको क्लियरली नज़र आएगा कि कितना टेम्परेचर कम हो रहा है। ये आपने कब से शुरू किया ये प्रोजेक्ट? ये हमने फरवरी 16 तारीख से शुरू किया था। 16 फरवरी इसी साल से? इसी साल से शुरू किया था। उसके बाद में 1.5 महीना हमारा कुछ काम थोड़ा सा अटक गया था बिकॉज ऑफ कोविड, और अभी हमने 27 मई से वापस स्टार्ट किया है काम। तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कोशिश कर रहे हैं इस मंथ के एंड तक हो जाए, 5-7 दिन प्लस माइनस में रखना ही पड़ेगा। इस महीने के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा? जी जी आज 15 तारीख है, इसका मतलब 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा? जी जी, कोशिश हमारी यही है। इतना फास्ट? क्योंकि पीछे तो बड़ा टाइम लग गया और अभी तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। 1 महीने से ही हमने काम को काफ़ी स्पीड अप किया हुआ है और 1 महीने में हमारी इतनी प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, ये टावर और कहाँ लगे हुए हैं? अभी कहीं पे नहीं लगे हुए, ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट होगा अगर ये पहला लगेगा तो। ये इस तरह का टावर कहीं नहीं लगा हुआ? नहीं जी, अभी तक कहीं नहीं लगा। और आपकी कंपनी ने ये टावर कहाँ लगाए हैं? ये भी हमारी कंपनी का ही पहला ही काम है अभी। अच्छा, पहले ही टावर है? पहला ये एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट टावर रहेगा, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, हमने ऑलरेडी पेटेंट किया हुआ है इस टेक्नोलॉजी को। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहला प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये पायलट प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, उसके बाद और भी कई जगह लग सकते हैं अगर ये कामयाब होता है तो? जी जी जी। तो कामयाब होने की कितनी की संभावना है इसकी? पूरी संभावना है वैसे तो, अगर हमारी तो वही कोशिश है कि पूरी संभावना है। हमने जो करा रखा, हमने जो जिस मेथड से हम काम कर रहे हैं उसमें पूरा ही संभावना है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। कितना की एरिया मतलब कि जो ये आप लगा रहे हो, ये कितने एरिया में ये लगेगा टावर आपका? कितना के एरिया जो है ये कंज्यूम करता है? ये सिर्फ 5 मीटर बाई 5 मीटर कंज्यूम करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। इसकी कोई हमारे पास में बहुत कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी है। अच्छा, सिर्फ 5 बाई 5 मीटर? आप देख सकते हैं ये 5 मीटर, ये वैसे 4.5 मीटर बाई 4.5 मीटर है। हाँ। लेकिन आधा मीटर हम लोग प्लस माइनस में रख रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं 5 मीटर बाई 5 मीटर। अभी जो एक्चुअल बन रहा है वो 4.5 मीटर बाई 4.5 मीटर में बन रहा है। और मतलब कि ये बिजली से चलेगा या हवा से, कैसे चलता है? बिजली से ही चलता है, बिजली से ही चलेगा। और फ्यूचर में कोशिश है कि इसको हम लोग कुछ और उसमें हाइब्रिड सिस्टम वगैरह कुछ लगाया जाए ताकि बिजली का कंजप्शन कम किया जाए। तो कितनी मतलब कि कोई स्पेशल जो लाइन बिछानी पड़ेगी इस टावर के लिए? कितनी की बिजली की कैपेसिटी, कितनी की बिजली चाहिए मतलब कि इसको चलाने के लिए? कोई स्पेशल लाइन नहीं, जो नॉर्मल जो हमारी लाइन आती है इलेक्ट्रिसिटी की उतनी ही चलेगी। सिर्फ 50 किलोवाट का कंजप्शन है इसमें। अच्छा, बहुत कम है। जी जी। और इसकी लागत कितनी है? सर लागत तो अभी आसपास 5 करोड़ के आसपास है सर। अच्छा, एक टावर की 5 करोड़ का है, तभी ये बड़ा बेनिफिटेड है 5 करोड़ रुपए में, और इतना एरिया कवर कर ले, पोल्यूशन फ्री कर दे, टेम्परेचर। मेन बात तो सर ये फुल्ली हमारा इंडिया में बना है। कोई भी इसके अंदर कहीं से बाहर से कोई पार्ट्स नहीं मंगवाए गए हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ही है, और इसलिए हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत ही कम है। एक मैंने देखा तो नहीं है, मैंने सुना ही है और पढ़ा है। अभी चाइना में भी एक ऐसा टावर बना हुआ है जो वहाँ का जो एरिया है पोल्यूशन का वो उसको साफ करता है। चाइना वाला बहुत बड़े स्केल पे है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, करीब 1000 करोड़ के आसपास है जहाँ तक मैंने सुना है। बाकी एग्जैक्टली तो मैं कह नहीं सकता, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे सकता, बट वो काफ़ी महंगा है, इतना मैं कह सकता हूँ। ये उसके मुकाबले बहुत सस्ता है और ठीक है, और बहुत कम स्पेस लेता है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम ये चाहते हैं भी ये कामयाब हो ताकि लोगों को बड़ी राहत मिले।
जी जी, थैंक यू सर, नमस्कार। ये थे मनोज दुआ जी जो कि मनोज जैना जी ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 8 ਮੰਜ਼ਲੀ ਉੱਚਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ 7-8 ਮੰਜ਼ਲੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੇਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਮਨੋਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 500 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ 500 ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਧੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਠੰਡਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।